ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ 9 صفر المظفر 38 ہجری میں وقوع پذیر ہونے والی جنگ نہروان کے بعد صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ اس مارکے میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خوارج کو سخت شکست سے دوچار کیا، جس کے نتیجے میں ان کی صفیں بکھر گئیں اور وہ مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ نہروان کی رسوائی نے ان کے افکار و احساسات پر گہرا ڈالا۔ ہر نیا دن ان کے دلوں میں افسوس اور بے چینی کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ بالآخر ایک متشدد گروہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ مستحکم کر لیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نہرواں میں مارے جانے والے ساتھیوں کا بدلہ لینا لازم ہے۔ چنانچہ جن خوارج کو میدان نہروان سے فرار کا موقع ملا تھا، انہوں نے ایک خوفناک سازش ترتیب دی۔ نشانوں میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس منصوبے کی قیادت عبد الرحمن بن ملجم کے پاس تھی۔ اس کے ساتھ برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر التمیمی بھی شامل تھے۔ یہ افراد ایک مقام پر جمع ہوئے، حکمرانوں کے طرز حکومت پر نکتہ چینی کی، پھر نہروان کے مارے جانے والوں کا تذکرہ کیا، ان کے لیے دعائے رحمت کی اور باہم کہنے لگے، ان کے بعد ہماری زندگی کی کیا وقات؟ وہ لوگ خالص توحید کی دعوت دیتے، حق بات کہنے میں کسی ملامت گر سے نہ گھبراتے تھے۔ اگر ہم اپنی جانیں قربان کر کے ان کے مخالف پیشواؤں کو ختم کر دیں اور لوگوں کو ان سے نجات دلا دیں تو شاید یہی ہمارے لیے بہتر ہو۔ یوں ہم اپنے مارے گئے ساتھیوں کا بدلہ بھی لے لیں گے۔ ناظرین، اس سلسلہ احداث میں عبد الرحمن بن ملجم نے آگے بڑھ کر کہا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے معاملے میں وہ خود پیش قدمی کرے گا۔ برق بن عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنائے گا، جبکہ عمر بن بکر نے کہا کہ وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی کرے گا۔ یوں ان تینوں نے باہم عہد کیا کہ ہر شخص اپنے مقصد کو ختم کرے گا یا خود جان دے دے گا۔ پھر انہوں نے اپنی تلواریں تیار کیں اور 17 رمضان المبارک کو ہر ایک اپنے معین مقام کی جانب روانہ ہو گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم قبیلے کندہ سے نسبت رکھتا تھا اور مصر سے آیا تھا۔ وہ کوفہ پہنچا تاکہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر حملہ کر سکے۔ کوفہ میں اس نے ان لوگوں سے رد بڑھانا شروع کیا جو نہروان سے بچ نکلے تھے، مگر اپنے ارادے کو پوشیدہ رکھا۔ ایک روز اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی۔ اسے وہ مناسب ساتھی محسوس ہوا۔ جب اس نے اپنا منصوبہ ظاہر کیا تو شبیب نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن لالچ اور تحریک کے ذریعے عبد الرحمن نے اسے آمادہ کر لیا۔ اسی دوران اس کی نظر بنو تمیم کی ایک جوان خاتون قطام بنت شجرہ پر پڑی۔ وہ اس کے حسن سے متاثر ہو کر مبہوت رہ گیا۔ قطام کے والد اور بھائی نہروان میں مارے جا چکے تھے۔ عبد الرحمن اپنے اصل مقصد سے غافل سا ہو گیا۔ قطام نے اسے پہچان کر بلوایا۔ جب اس نے نکاح کی پیشکش کی تو اس نے کہا، میں اس وقت تک آمادہ نہیں جب تک میرے دل کا اطمینان حاصل نہ ہو۔ اس نے پوچھا، یہ اطمینان کیسے ہوگا؟ جواب ملا، 3000 دینار، ایک خادم، ایک گانے والی لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ عبد الرحمن نے کہا، ان کے قتل کا ارادہ تو پہلے ہی سے ہے، باقی اشیاء تمہارا مہر ہوں گی۔ قطام نے کہا، اگر تم نے یہ کام کر دکھایا تو ہمارے لیے باعث تسکین ہوگا، اور اگر تم کامیاب ہوئے تو بظاہر دنیا سے بڑھ کر اجر پاؤ گے۔ عبد الرحمن نے جواب دیا، میرا یہاں آنا ہی اسی لیے ہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اس نے کہا کہ کسی قابل اعتماد شخص کو شامل کیا جائے۔ چنانچہ قطام نے اپنی قوم سے وردان نامی فرد کو بلوایا اور اسے بھی راضی کر لیا۔ بعد ازاں عبد الرحمن دوبارہ شبیب بن شجرہ کے پاس گیا اور کہا، میں مسجد میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، جوں ہی امیر المؤمنین فجر کے لیے آئیں گے حملہ کر دوں گا۔ اگر بچ نکلے تو بدلہ ہوگا، اور اگر مارے گئے تو آخرت کا اجر دنیا سے بہتر ہے۔ شبیب نے کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میں سوچ لیتا، مگر حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں میرا دل آمادہ نہیں۔ انہوں نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، سبقت فی الاسلام کا مقام رکھتے ہیں، میں اس اقدام پر راضی نہیں۔ ناظرین، عبد الرحمن بن ملجم نے شبیب سے کہا، کیا تمہیں علم نہیں کہ نہروان میں ان کے حکم سے ہمارے ساتھی مارے گئے؟ شبیب نے جواب دیا، کیوں نہیں، مجھے معلوم ہے۔ عبد الرحمن نے اکسایا، تو آؤ اپنے بھائیوں کے بدلے میں انہیں قتل کر ڈالیں۔
चंद जुमलों की बहस के बाद शबीब आमादा हो गया। दोनों कुताम बिन शजरा के पास पहुंचे। वो उस वक्त मस्जिद में इतिकाफ में थी। उन्होंने कहा कि वो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए तैयार हैं। कुताम ने कहा, जब इरादा पुख्ता कर लो तो रवानगी से पहले मुझसे मिलना। सन 40 हिजरी के एक जुमा की सुबह, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद की जानिब आए, उससे कबल की रात अब्दुर्रहमान कुताम के पास पहुंचा। उसने रेशमी कपड़ा मंगवाया, उनकी दस्तारबंदी की। अब्दुर्रहमान और शबीब ने तलवारें संभाली। इसी असना में वरदान भी आ मिला। तीनों उस दरवाजे के मुकाबिल बैठ गए जहां से हजरत सैयदुना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाते थे। जूं ही आप फजर के लिए दाखिल हुए, शबीब ने पहला वार किया, मगर तलवार दरवाजे के पट पर जा लगी। फौरन अब्दुर्रहमान ने सरे मुबारक पर जर्ब लगाई। वरदान घबरा कर भागा। रास्ते में एक करीबी शख्स ने उसके हाथ में रेशम और तलवार देखी। सबब पूछा। हकीकत मालूम होते ही उसने उसे मार डाला। शबीब तारीकी का फायदा उठाकर कबीले किंदा की सिमत निकल गया। शोर बरपा हुआ। एक शख्स उएमिर ने उसका पीछा किया, तलवार छीनी और हमला किया, मगर साथियों के आ जाने पर उसे छोड़ना पड़ा और शबीब भीड़ से दूर निकल गया। अब्दुर्रहमान मस्जिद ही में गिरफ्तार हुआ। हमदान के एक आदमी, जिनकी कुनियत अबू दमा थी, ने उसकी तलवार पकड़ी और टांग पर वार किया। जख्मी होकर वो गिर पड़ा। इधर अमीरुल मोमिनीन पीछे हटे और अपने भांजे हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हजरत जोदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। आफताब तुलू हो चुका था। लोग आपको जख्मी हालत में घर ले गए। आपने फरमाया, उस शख्स को मेरे पास लाओ। अब्दुर्रहमान पेश किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या मैंने तेरे साथ हुस्न सलूक न किया था? तुझे किस चीज ने मेरे कत्ल पर आमादा किया? उसने कहा, मैंने इस तलवार को 40 रोज तक तेज किया और दुआ की कि इससे वो मारा जाए जो खल्क़े खुदा के लिए शर का बाइस हो। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मेरा गुमान है तू इसी तलवार से मारा जाएगा और बदतरीन तू ही है। फिर हजरत सैयदुना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम ने हाज़रीन, खुसूसन अपने फर्जंद हजरत सैयदुना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करते हुए फरमाया, अगर मैं जिंदा ना रह सका तो इसे क़िसास के तौर पर इसी तलवार के एक ही वार से कत्ल कर देना। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु आंखों देखा हाल बयान करते हैं, उस रात जब कूफा की बड़ी मस्जिद में हमला हुआ, मैं उन लोगों के साथ नमाज में मशगूल था जो दरवाजे के करीब क़याम, रुकू और सुजूद की हालतों में थे। इसी दौरान अमीरुल मोमिनीन फजर के लिए घर से निकले और मामूल के मुताबिक निदा दे रहे थे, ए लोगो, नमाज की तरफ आओ। जून ही आप दरवाजे के करीब पहुंचे, एक चमक सी दिखाई दी। फिर आवाज आई, ए अली, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, न तेरा न तेरे साथियों का। तलवार लहराई गई। फिर मैंने आपको फरमाते सुना, इसे जाने न दो। लोग हर तरफ से लपके और उसे पकड़कर पेश किया गया। आपने फरमाया, जान के बदले जान, अगर मैं वफात पा जाऊं तो उसे वैसे ही कत्ल किया जाए जैसे उसने मुझ पर वार किया, और अगर मैं बच गया तो मैं खुद फैसला करूंगा। इधर लोग घबराकर हजरत सैयदुना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। हजरत उम्मे कुलसूम बिन्त अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अश्कबार थीं और कह रही थीं, ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह तुझे रुसवा करे। वो बोला, क्यों रोती हो? मैंने ये तलवार 1000 दिरहम में खरीदी और 1000 दिरहम खर्च करके जहर आलूद की। ये वार पूरे शहर पर होता तो कोई ना बचता। हजरत अब्दुल्ला बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उस दिन कई तबीब जमा हुए। उनमें असीर बिन उमर सुकूनी ने बकरी का ताज़ा फेफड़ा लेकर एक रग निकाली और जख्म की जगह दाखिल की। फिर फूंक मारकर निकाला तो उसमें दिमाग की सफेदी नजर आई। तबीब ने कहा कि जख्म गहरा है और बचना मुश्किल है। हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्ला ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर खुदा न खास्ता आप वफात पा जाएं तो क्या हम हजरत इमाम हसन की बैत कर लें? आपने फरमाया, न मैं हुक्म देता हूं न मना करता हूं, तुम खुद बेहतर समझते हो। फिर आपने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुलाया और वसीयत फरमाई, तकवा इख्तियार करना, दुनिया के तालिब न बनना, चाहे वो तुम्हें चाहे। जो ना मिले उसका गम न करना, हक पर कायम रहना,
यतीमों पर रहम, बेबसों की मदद, आखिरत के लिए अमल, जालिम का मुकाबला और मजलूम की नुसरत, किताबुल्लाह पर अमल और मलामत गर की मलामत से बेखौफ रहना। फिर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, क्या तुमने अपने भाइयों को की गई वसीयत याद कर ली? अर्ज किया, जी हां। फरमाया, मैं तुम्हें भी इन्हीं बातों की नसीहत करता हूं और अपने दोनों भाइयों की ताजीम व तकरीम की ताकीद करता हूं। उनका तुम पर बड़ा हक है, उनकी इताअत करना। फिर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से फरमाया, अपने इस भाई के साथ हुस्ने सलूक करना। ये तुम्हारे वालिद का बेटा है और तुम जानते हो कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। फिर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया, मेरे बेटे, तकवा इख्तियार करना, वक्त पर नमाज कायम करना, बर वक्त ज़कात अदा करना, अहसन तरीके से वुज़ू करना कि तहारत के बगैर नमाज नहीं और माने ज़कात की नमाज कबूल नहीं, दूसरों की ख़ता मुआफ़ करना, गुस्सा पी जाना, सिले रहमी करना, जहालत पर बुर्दबारी, मामलात में सबात, तिलावत कुरान में पाबंदी, पड़ोसियों से हुस्न सलूक, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना और फुहश से दूर रहो। नाजरीन, बाज़ रिवायात में आता है कि 17 रमज़ानुल मुबारक को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने ख्वाब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपने ये ख्वाब अपने फ़र्जंद हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हुए फरमाया कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने मेरे साथ सख्ती की और मुझे नाहक इज़ा दी। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, अल्लाह से दुआ करो। चुनाचे आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों से बेहतर जमात में पहुंचा दे और उन पर मेरे बजाय ऐसा शख्स मुसल्लत कर दे जो मुझसे बदतर हो। अपने अहले खाना को वसीयत फरमाने के बाद आपने कलिमा तैयबा पढ़ा और अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी। आपका विसाल 21 रमज़ानुल मुबारक को हुआ। आपने अपने कातिल अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के बारे में हिदायत फरमाई, इसे कैद रखो, अगर मैं वफात पा जाऊं तो किसास में एक ही वार से कत्ल करना, और अगर मैं जिंदा रहूं तो सिर्फ जख्मों का बदला होगा। एक रिवायत में है कि फरमाया, इसे खाना पीना दो और कैद में हुस्न सलूक करो। अगर मैं शिफायाब हुआ तो अपने खून का वली मैं खुद हूं, चाहूं तो मुआफ करूंगा और चाहूं तो बदला लूंगा। नीज ताकीद फरमाई, ज्यादती हरगिज न करना, बेशक अल्लाह जाती करने वालों को पसंद नहीं करता। आपने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुसला करने से सख्ती से मना किया और फरमाया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, खून रीजी में आगे न बढ़ना। ऐसा न हो कि अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया गया कहते कहते हद से बढ़ जाओ। ए हसन, अगर मैं वफात पा जाऊं तो सिर्फ इतनी ही ज़र्ब लगाना जितनी उसने लगाई, मुसला न करना। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुसला से बचो, खा पागल कुत्ते ही का मामला क्यों ना हो। बाज़ मौर्रिखीन के बयान के मुताबिक अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम खारजी फितना परदास था, फ़तह मिस्र में शरीक रहा, कुरान और फ़िक़्ह की तालीम पाई और बनु तजूल से ताल्लुक़ रखता था। पहले इबादत गुजारों में शुमार होता था, मगर अंजाम कार गुमराही में जा पड़ा। खवारिज की नज़र में वो बड़ी फजीलत वाला समझा जाता था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन पर वार के सबब दुनिया व आखिरत में बदबख्त ठहरा। इसी रात उसका साथी बरक बिन अब्दुल्ला हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की घात में था। जब वो फजर के लिए निकले तो उसने वार किया जो सिरीन पर लगा। गिरफ्तार होने पर बोला, मेरे पास एक खबर है जो आपके लिए खुशी की है, अगर बताऊं तो क्या मेरे हक में नफा बख्श होगी? दरियाफ्त किया गया, कौन सी खबर? उसने कहा, मेरे साथी ने उसी रात हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला कर दिया है। नाजरीन, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु तो बगैर मुहाफिज के निकलते थे। फिर बुरक बिन अब्दुल्ला के कत्ल का हुक्म दिया गया और वो हलाक कर दिया गया। उसके बाद एक तबीब साइदी को बुलाया गया। मुआयना के बाद उसने अर्ज किया, दो सूरतें हैं, या तो दाग कर जख्म बंद किया जाए या ऐसा मशरूब दिया जाए जिससे आइंदा औलाद का सिलसिला मुनक़ता होगा, मगर जख्म भर जाएगा क्योंकि वार जहर आलूद है। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, आग की तकलीफ बर्दाश्त नहीं,
यजीद और अब्दुल्ला मेरे लिए काफ़ी हैं। चूंकि मशरूब दिया गया और आप शिफायाब हो गए, बाद अज़ां औलाद ना हुई। फिर हिफाजत का निज़ाम सख्त कर दिया गया। नमाज में सजदा के वक्त भी ख़ास पहरा मुकर्रर था। इसी रात उमर बिन बकर ने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घात की, मगर वो बीमारी के सबब घर से ना निकले। उन्होंने खारिजा बिन हुज़ाफ़ा को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, जो उनके अमन व इंतज़ाम के सरबराह थे। उमर बिन बकर ने गलतफहमी में खारिजा पर वार कर दिया और वो शहीद हो गए। कातिल पकड़ा गया और हज़रत उमर बिन आस की खिदमत में पेश हुआ। पूछा गया, किसे मारा? जवाब मिला, खारिजा बिन हुज़ाफ़ा। फरमाया, तुम मुझे मारना चाहते थे, मगर तकदीर में खारिजा थे। फिर उमर बिन बकर को कत्ल कर दिया गया। अक्सर मुअर्रिखीन के मुताबिक हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम की मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 माह और 6 दिन थी। बाज़ ने 3 या 14 दिन का इख्तलाफ भी नकल किया है। एक कौल ये है कि 18 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी को बैत हुई और 21 रमज़ान 40 हिजरी को विसाल हुआ। इस हिसाब से 4 साल 9 माह और 3 दिन बनते हैं। गुस्ल व तकफीन हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने किया। 3 कपड़ों में कफन दिया गया, कमीज़ शामिल ना थी। नमाज जनाजा हज़रत इमाम हसन ने पढ़ाई। तकबीरात की तादाद में इख्तलाफ है, 4 या 9 का कौल मिलता है। मदफन के बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक जामे मस्जिद कूफा के करीब दरवाज़ा किंदा के पास फजर के बाद तदफीन हुई। एक कौल में कसर इमारत के नज़दीक रात के वक्त दफन का जिक्र है और मकाम आम लोगों से मख्फी रखा गया। एक रिवायत में मदीना मुनव्वरा मुंतकिल किए जाने का भी बयान मिलता है। अम्र की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाजरीन, एक रिवायत में यह भी बयान किया जाता है कि कूफा से बाहर नजफ में जो मकाम मशहद के नाम से मारूफ है, वहीं अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की कब्र मुबारक है। ताहम बाज़ अहले इल्म ने इसकी तरदीद की है, जिनमें काजी शरह बिन अब्दुल्ला अन्नखई और मोहम्मद बिन सुलेमान अल हज़रमी का जिक्र मिलता है। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक दौर खिलाफत बनु अब्बास में एक मकाम मुअय्यन करके उसे मशहद अली करार दिया गया, जबकि उलमा की एक जमात का कहना है कि ये हज़रत अली करमल्लाह वजहल करीम की कब्र नहीं, बल्कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनसबत है। इमाम इब्न तैमिया ने भी इसी मौक़िफ़ की निस्बत नकल की कि नजफ़ का मज़कूरा मशहद कब्र अली नहीं। ये भी कहा जाता है कि अहले बैत, शिया और दीगर मुसलमानों ने तवील मुद्दत तक इसे कब्र अली के तौर पर मारूफ नहीं किया। बाद के अदवार खुसूसन बनी बुया के ज़माने में इस निस्बत का ज़हूर हुआ। उम्र मुबारक के बारे में इख्तलाफ है। बाज़ ने 59 साल, बाज़ ने 65 साल, जबकि एक कौल 63 साल बयान करता है और आखिरी कौल को राजिह समझा जाता है। शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और फरमाया, कल तुमसे एक अजीम हस्ती जुदा हो गई, इल्म फ़हम में यकता, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा देते तो वो फतह के बगैर वापस ना आते। उन्होंने दुनियावी माल ना छोड़ा, सिर्फ 700 दिरहम थे जो खादिम के लिए महफूज किए। एक मजलिस में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उनके 4 मनाक़िब मशहूर हैं, काश उनमें से एक ही मुझे मिल जाता। फिर हदीस रायत और ये इरशाद नबवी नकल किया, अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, और मन कुन्तु मौलाहू फ़अलियुन मौलाहू। एक रावी साद बिन उबैदा बयान करते हैं कि एक शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आया। पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पूछे तो आपने बयान फरमाए। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के औसाफ पूछे तो वो भी जिक्र किए, और नागवारी ज़ाहिर करने वाले से फरमाया कि तास्सुब छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। जब शहादत की खबर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची तो वो आप दीदा हो गए। उनसे कहा गया कि आप तो उनके खिलाफ बरसरे पैकार रहे, तो फरमाया, तुम नहीं जानती कि लोग कितने बड़े साहिब इल्म व फ़िक़्ह से महरूम हो गए। एक मौके पर उन्होंने ज़िरार सुदाई से कहा, हज़रत अली के औसाफ बयान करो। इसरार पर ज़िरार ने अर्ज़ किया, वो दूर अंदेश, निहायत शुजा, फ़ैसले में क़ाते, अदल पर कायम, इल्म उनके पहलुओं से उमड़ता, हिकमत उनकी ज़बान से बोलती और दुनिया की चमक दमक से बेरग़बत रहते थे। नाज़रीन, ज़िरार सुदाई ने बयान जारी रखते हुए कहा, वो रात की तन्हाई में देर तक गौर व फिक्र करते, खौफ खुदा से आंसू बहाते,
सादा लिबास और मामूली खुराक पसंद फरमाते। हमारे दरमियान होते तो हम जैसे एक फर्द दिखाई देते। सवाल करते तो जवाब देते, रहनुमाई चाहते तो आगाह फरमाते। कुर्ब के बावजूद उनके रोब से बेजा बात की जुर्रत न होती। दीनदारों की तकरीम, मसाकीन को अपने करीब बिठाते। ताकतवर उनसे नाहक बात ना मनवा सकता और कमजोर उनके अदल से नाउम्मीद ना होता। मैंने बारहा देखा कि जब अंधेरा छा जाता तो वो दाढ़ी थाम कर बेकरारी से रोते और फरमाते, ए दुनिया, किसी और को फरेब दे, मुझसे दूर हो जा। मैंने तुझे ऐसी तलाक दी जिसमें रुजू नहीं। आह, ज़्यादे राह कम है, सफ़र दराज और रास्ते पुररहबत हैं। ये सुनकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्ह आप दीदा हो गए और फरमाया, अल्लाह अबुल हसन पर रहमत फरमाए, वो वैसे ही थे जैसे तुमने कहा। फिर पूछा, ए ज़िरार, उनकी शहादत का गम कैसा है? अर्ज़ किया, उस माँ के गम की मानिंद जिसका बच्चा गोद में ज़िबा हो जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब का जिक्र किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। फिर हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया को लाया गया। एक घर में दाखिल करके दरवाज़ा बंद हुआ। कुछ देर बाद हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बाहर आए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मेरे हक में फैसला हो गया। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्ह निकले और कहा, रब्बे काबा की कसम, मुझे बख्श दिया गया। इब्ने असाकिर ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्ह से नकल किया कि एक शख्स ने कहा, मैं मुआविया से बुग़्ज़ रखता हूं। पूछा, क्यों? बोला, उन्होंने अली के खिलाफ जंग की। फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। मुआविया का रब रहीम है और उनके मुकाबिल रजुल करीम। तुम्हें उन दोनों के दरमियान क्या दखल? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत अली के बारे में सवाल हुआ तो फरमाया, खुदा की कसम, वो अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ सीधा लगने वाला तीर थे। उस उम्मत की रब्बानी शख्सियत, फजीलत और सबकत इलल इस्लाम के हामिल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी, हुक्म इलाही पर अमल में कभी सुस्ती न की, दीन के मामले में बेमलामत, माल अल्लाह में खयानत से पाक और कुरानी अहकाम में हमेशा राह अज़मत इख्तियार करने वाले। नाज़रीन, इमाम अहमद बिन हन्बल रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे अब्दुल्ला बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं अपने वालिद के साथ बैठा था कि करख के चंद लोग आए। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के अदवार खिलाफत का जिक्र किया। फिर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम के अहद पर तवील गुफ्तगू होने लगी। इमाम अहमद ने सर उठाकर फरमाया, तुम खिलाफत अली पर बहुत कलाम करते हो। क्या खिलाफत ने अली को जीनत दी? नहीं, अली ने खिलाफत को शरफ बख्शा। बाद रिवायात में अशास बिन कैस पर तोहमत का जिक्र मिलता है। याकूबी ने लिखा कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम 1 माह तक अशास के हां ठहरा और तलवार तेज करता रहा। तबक़ात इब्न साद में है कि वारदात से एक रात क़ब्ल वो अशास के साथ मस्जिद में सरगोशियों में मशगूल रहा और फजर के करीब अशास ने कहा, ये सुबह तुम्हें रुस्वा करे। ताहम कसीर अहले इल्म इन रिवायात को ज़ईफ़ करार देते हैं और अशास पर इल्ज़ाम के लिए क़ाते दलील नहीं पाते। वो अहद खिलाफत में मुखलिस साथी समझे जाते थे, अहले शाम के खिलाफ पेश पेश रहे, खवारिज के फितना अंगेज नज़रियात से बेजार हुए, अहले बैत से ताल्लुक़ मजबूत रखा। अपनी बेटी का निकाह हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया और उनकी वफ़ात के 40 रोज़ बाद हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अहले बैत से अशास पर तोहमत की कोई मोतबर निस्बत मनकूल नहीं। हकीकत यह है कि शहादत खवारिज के हाथों हुई, जो नहरवान के मकतूलीन के इंतकाम पर मुसिर थे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के अल्फाज, मैंने तलवार 1000 में खरीदी और 1000 खर्च करके जहर आलूद की। एक वार शहर पर हो तो कोई ना बचे। उनके दिलों के कीनों बुग़्ज़ को जाहिर करते हैं और ये अदावत आम मोमिनीन ही नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी के खिलाफ भी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान करते हुए मुहर्रमात से बचने की तलक़ीन की और इसी महीने में शहादत अली की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, ए अली, इस महीने में तुम्हारा खून बहाया जाएगा। गोया मैं मंजर देख रहा हूं कि तुम नमाज में मशगूल होगे और शकी तरीन शख्स तुम्हारे सर पर वार करेगा। तुम्हारी दाढ़ी और चेहरा खून से तर हो जाएगा। फिर फरमाया,
जिसने तुम्हें कत्ल किया गोया उसने मुझे कत्ल किया। जिसने तुमसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। और जो तुम्हें नाजीबा कहे वो मुझे नाजीबा कहता है, क्योंकि तुम मुझसे हो और मेरी जान की मानिंद हो। तुम्हारी रूह मेरी रूह से और तुम्हारी फितरत मेरी फितरत से है। सुनन नसाई और मुस्नद अहमद में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू तुराब, क्या मैं तुम्हें दो बदबख्त तरीन लोगों के बारे में ना बताऊं? नाजरीन, साहबे कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर इरशाद फरमाइए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला बदबख्त कौम समूद का वो शख्स था जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचें काटीं, और दूसरा वो होगा जो ए अली तुम्हारे सर पर वार करेगा, यहां तक कि तुम्हारी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। अनीस रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी की रात फातिह खैबर हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ इफ्तार किया। शब भर इबादत में मशगूल रहे, आसमान की तरफ देखते और फरमाते, ये वही रात है जिसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। फजर के लिए निकले तो रास्ते में कुछ जानवरों की आवाज़ें सुनाई दी। पेशगोई को याद रखते हुए आप अज़्म सबात के साथ मस्जिद की जानिब बढ़े, नमाज शुरू की। सजदे खालिक में सर रखा तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने वार कर दिया। सर अख्तस जख्मी हुआ और फजा में गम की सदा बुलंद हुई कि हिदायत का सुतून मजरूह हो गया। शहादत के वक्त आपकी वसीयत तारीख़ तबरी में यूं मनकूल है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ए हसन, मैं तुम्हें और अपनी औलाद व अहले खाना को तक़वा की वसीयत करता हूं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरका ना डालो। बाहमी इस्लाह आम नफल इबादात से बढ़कर है। सिला रहमी करो, यतीमों और हमसायों का हक अदा करो, कुरान पर सबकत लेकर अमल करो, नमाज को कायम रखो कि वो दीन का सुतून है, ज़कात अदा करो, अल्लाह की राह में जान व माल से जिहाद करो, नबी और उनके असहाब के बारे में अल्लाह से डरो, फ़ुक़रा व मसाकीन को अपनी मईशत में शरीक रखो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तर्क ना करना कि वरना बुरे लोग मुसल्लत होंगे, गुनाह और ज़्यादती में ताउन ना करना। मैं तुम्हें सलामती की दुआ के साथ रुखसत होता हूं। फिर आपकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहा और उसी कलिमत तैयबा के साथ ये आफ़ताब हिदायत ग़ुरूब हुआ। एक रिवायत के मुताबिक 21 रमज़ान की सुबह शहादत हुई। जिसने ये जुर्म किया उसका ताल्लुक खवारिज से था। खवारिज उन लोगों को कहा जाता है जो मुत्तफ़िक़ा मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ मुसल्ला बगावत करें। उनके बातिल अक़ीदे में कबीरा गुनाह का मुर्तकिब मुसलमान काफिर करार पाता है। इसी बिना पर वो अइम्मा मुस्लिमीन के खिलाफ खुरूज करते और जुम्मे और आयदैन में शिरकत से गुरेज करते। अहद अली में भी वो बगावत पर आमादा हुए और सहाबा किराम की जमात से अदवात जाहिर की। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने फरमाया, खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। ये कलिमात 3 बार इरशाद किए और बताया कि आसमान के नीचे बदतरीन लोग हैं। खुशनसीब वो जो उनके शर से महफूज रहे और जो उनके हाथों शहीद हुए। फिर वो उनकी गुमराही पर आप दीदा हुए और कहा कि वो मुसलमान थे मगर अपनी रविश से गुमराह हो गए, और फरमाया कि मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, अगर सच ना हो तो मेरे कान बहरे हों। नाज़रीन, ये था वो दर्दनाक बाब जिसमें शजात, इल्म, अदल और ज़ुहद का पैकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। उनकी हयात तय्यबा हमें तक़वा, सबात, हुस्न अखलाक, इल्म दोस्ती और हक़ पर डटे रहने का दर्स देती है। उनकी वसीयत के अल्फाज आज भी हमें इत्तेहाद, सिले रहमी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की याद दहानी कराते हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए, ताकि ऐसे ही मुस्तनद और दिलनशीन तारीख़ी वाक़यात आप तक बाकायदगी से पहुँचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।